So that is my look for the day. That's like my new crossbody backpack, and I'll show you. That is me, ready, steady, and looking forward to hitting Singapore. Oh, did I tell you there was a washer and a dryer? So that's the me. So that's the swimming pool. That's for another day. This is the fantastic lobby. I just love these chandeliers. Check the fish out. They're so pretty. It's actually got mustaches. Check out the orchid. It's real. Like I touched it. It's like actually real. Now I'm sanitizer. Now let me show you the actual lights. Let me show you. These are the lights. Like, isn't that fantastic? I'll show you the picture. So that's the swimming pool. That's for another day. This is the fantastic lobby. I just love these chandeliers. Check the fish out. They're so pretty. It's actually got mustaches. Check out the orchid. It's real. Like I touched it. It's like actually real. Now I'm sanitizer. Now let me show you the actual lights. Let me show you. These are the lights. This is the road where. Check this out. So pretty. So I'm having this strawberry acai bowl. It's called the strawberry acai with lemonade. Starbucks refreshers. It's not a very refreshing bowl. And I've gotten a venti for like $7.99. But it's really refreshing. It tastes like so it's got like these rose type thingies inside. I don't know whether you can see them. And they have like these peels of strawberries. So it tastes like if you have like water and strawberries mixed inside, it tastes like that. It's got like a little froth also. Yum. So that's the pigeon I was talking about. This little piece is like this Starbucks pigeon, okay? And he is here and he terrorizes all the people sitting around. And he sits on that particular table. And if you notice his feet, he's got like web, like they're not like something's wrong with his like toenail, and he doesn't walk right, you know. But he's like one confident pigeon. He loves grooming himself. He's like nicely puffered out, and he's a Starbucks pigeon. And he sits on this particular table at this very Starbucks Orchard Grove spot. He's the cutest little pigeon in the world. I'm going to call him the Starbucks pigeon. Yeah, Starbucks pigeon. Now that was one refreshing drink, perfect for the summer month. Went down really fast. Thank you. That's me taking a break from the sun. I always carry an umbrella. It's better than wearing a cap. And the sun here can be so strong that it makes sense to be under an umbrella. And I love the cheetah print on my umbrella. It's a tiny little umbrella. It fits into any of my pouches. Wait, let me show you. I love like these 7-Eleven kiosks. They're all around the city. You can find souvenirs, like ice cream, drinks, soft drinks, beers, candies, alcohol, peanuts, nuts. Okay, and by the way, another secret here is that I found out that the McDonald's here in Singapore is supposed to be one of the best in the world. Reason being that they have this sauce which is like the curry sauce, which if you eat with like the nuggets and stuff, like it's like apparently like super amazing. Like till now I have not tried the McDonald's here, so I cannot comment, but I've heard really good things about it. So hopefully I'll go with Shanzeh and Maha one day and try the McDonald's, and then I will give you an actual review of how the curry sauce is, like with the nuggets. Yeah, I know people are getting that curry sauce and actually bringing it to Karachi, and
eating it with the nuggets over there. So it's supposed to be like the best. So my review to come once I have it. I'm just in love with the greenery here. I mean, imagine this, such a busy street. Look at the palms. I mean, look at the flowers. Look at this. I mean, and they've got like these, it's a non-smoking zone and the penalty is like crazy. Look like, it is like a public street by the way. And look at the flowers. Look at the trees. They're like ancient, like these old dinosaurs. It's like walking in Jurassic Park in the middle of the city where you have like a kebab rat place, a mall, like in love. Like that's me when I'm in the mood for combat. Hiya! Oh, I just love Haagen-Dazs. Oh, cakes here, man. So yummy. Hi. Number 1 Starbucks in Singapore. Well, that's a tall claim. Review will follow later. So Maha, Chandra and myself had dinner here yesterday. I mean, the burger was so delicious and the fries were good, but like I like the burger better. I just love the vibe here. I mean, people are just sitting and chilling and like catching up with friends. And right here is again like that's Orchard Road and Isetan. And then right here, this is the intersection between Orchard and Patterson Road. That is the Ion Orchard. Can you see that? It is so pretty. It's got Louis Vuitton, York, Prada, Tiffany and Co, Cartier, Dolce & Gabbana. Yep, those are the residences. And that's Isetan. Check it out. Like this girl fighting over these, this is going to be. Spicy pepper. They don't take mine. That's mine. That's mine. Okay, I like it, but the fries are really good. Oh no, shake that fries. What to do?
फेवरेट फाउंडेशन के बाद जो होता है कंसीलर इज द चीज़ केक इन दिस द थिंग इसमें I'm at the Benefit stall and this is the tweezer that I use. It's supposed to be it's like the best one. I've used all types of tweezers, but this Benefit tweezer is very difficult to find. Whenever I find these, I buy like 4, 5 and keep them because these are like the best ones. I believe hair care is most important and the basis of hair care begins with a good shampoo and conditioner. I usually use Kerastase in Pakistan. Sorry, have you used? So I generally use Kerastase in Pakistan because that's generally the only thing available which I used to get from Alkaram Galleria. But now with like the import ban and all, I don't think वो मिलेगा ही. मगर ये Kerastase से ये वाला रेंज है ये सबसे अच्छा वाला था क्योंकि इसका शैम्पू कंडीशनर लेकिन इसका सबसे अच्छा जो था वो यहाँ पे नहीं है कि एक सीरम की बॉटल होती थी तो वो भी ये भी सही है मगर अभी काम चलाओ था बेसिकली। ये जो है GHD का प्रोफेशनल एडवांस स्टाइलर ये एक इनका है और GHD कर्व थॉम लेकिन इनके पास वो प्लैटिनम नहीं है। हाँ एक एडवांस स्टाइलर है या प्रोफेशनल एडवांस स्टाइलर रियली गुड। इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं ये कर्ल्स वगैरह के लिए करने के लिए दिस इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे $475 का है यहाँ पे $345 का है। तो प्रॉब्लम विद GHD है कि मैंने लिया था लेकिन वो चल भी नहीं रहा समथिंग इज रॉन्ग सो आई एम लाइक नॉट लाइक इट्स ओके इट्स नथिंग दैट गुड। अच्छा मेरे पास एक फोरियो वाला भी है मेरे पास ये था विच आई गॉट फ्रॉम द एयरपोर्ट इट्स नाइस नथिंग ग्रेट एंड माई स्किन फील्स रियली लाइक रेड एंड लाइक क्लीन आफ्टर आई यूज इट बट फॉर लाइक $489 would I buy it again? I don't think so but like ठीक नॉट वर्थ द प्राइस। अगर सनब्लॉक्स लेने हैं मैंने यकीन मानो बहुत सारे ट्राई किए हैं लेकिन सुपर ग्रुप के जो सनब्लॉक्स हैं वो बेस्ट हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ इनका डिफरेंट आता है एक अनसीन सनस्क्रीन है ग्लो स्क्रीन है मिनरल शीन स्किन है और ये भी है लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है अनसीन सनस्क्रीन ये है $58 का यहाँ पे बट लाइक it lasts a while it's really good again my most favorite La Mer। दुनिया में मेरी स्किन ज़िंदगी में मेरी स्किन बहुत ख़राब रही है मगर अगर मैं भूखी भी मर रही हूँ तो मैं La Mer की मॉइस्चराइजिंग क्रीम लूँगी। सिंगापुर डॉलर $605 डिफरेंट इनमें आते हैं एक है लाइट क्रीम और ये है एक्चुअल मॉइस्चराइजिंग एक कूल जेल क्रीम आती है जो यहाँ पे $335 की है। मॉइस्चराइजिंग कूल जेल क्रीम तो बड़ा वाला बॉटल है $605 ये भी मैं ये वाली यूज़ करती हूँ तो एक्चुअल क्रीम डाला मैं मॉइस्चराइजिंग से लेकर थिकर बेस लेकिन की सॉफ्ट क्रीम भी आती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड जेल क्रीम टेस्टर वाओ रखा है फैंसी। इनके पास मेरा ये भी है फाउंडेशन भी है और कंसीलर वगैरह भी है लेकिन ठीक है लाइक फाउंडेशन कंसीलर सही है मगर ये जो है दिस इज़ इफ़ यू हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम La Mer जस्ट गेट द ओरिजिनल लाइक। अच्छा इनका ये भी बहुत अच्छा है ये लिप बाम इफ यू नॉट ट्राइड इट फॉर $140 इफ यू वांट टू स्पेंड ऑन लिप बाम डेफिनेटली ट्राई दिस वरना ये बकवास है ये बिल्कुल बकवास सही है ये फिर भी सही है अगर आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड है लंबी फ्लाइट वगैरह से आए हो तो फिर ठीक है मगर आजकल के हालात में आई डोंट थिंक ये है तो सोना बस पर नॉट लाइक वो अगर वो वाली चीज़ है तो ये वाला ठीक है। काश ज़िंदगी में बंदा La Mer ही लगाए। तो अभी मैं Chanel पे आई हूँ और ये वाला जो है ये सिंगापुरियन डॉलर $55 का है और ये वाला सबसे अच्छा आई मेकअप रिमूवर है ये मैंने अपना ट्राई किया है It's really nice मतलब कि my eyes are sensitive and this is like the best और ये वाले जो हैं हाँ तो ये बॉबी ब्राउन तो मैं आई हूँ Chanel वालों ने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी और मेरा जो ब्लश है जो मैं यूज़ करती हूँ ये पॉट रूज है यहाँ पे $59 का है बट ये लास्ट यू फॉर एवर एंड दिस इज़ लाइक द बेस्ट। सो ये है सिंगापुर का MRT स्टेशन
लाइक सबवे स्टेशन। देखो कितना साफ़ सुथरा है और इट्स लाइक बैंकॉक वगैरह में जैसे होता है। और इनकी लाइंस है और ये वाली जो सर्कल है ये वाला इज़ मोस्ट यूज। मगर ये वाला जो बच्चे जहाँ पर होंगे वो होगा डोवर कैंपस। मैं देखकर बताती हूँ। सो हम लोग यहाँ ऑर्चर्ड स्टेशन का ये है राइट। और बच्चों का जो डोवर कैंपस जो बच्चों का UWC है वो है ये वाला। तो ऑर्चर्ड से हमें लाइक कनेक्ट करते करते जाना होगा। तो यू नो आइदर यू टेक 3-4 ट्रेन एंड कम हियर और टेक द लाइक द लॉन्गर रूट। आप पता नहीं कर आके आपको ऑर्चर्ड रोड और उसका, या तो आप ये वाली रोड लेते जाओ फिर ये लो ये लो। एनीवेज दैट्स द थिंग। वरना आपको $20-25 लग जाते हैं, वरना इसमें आपको $4 लगेंगे, वरना $20 से $25। ये यहाँ का है जूली स्ट्रीट और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जूली लेवन कंपनी। इनका जनरली जो सोने वोने की चीज़ें होती हैं वो लाल जैसे डब्बों में रखते हैं। सोने वोने की चीज़ें की रेट वाह। ये आई थिंक इनका 24 कैरेट सोने की चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स, बुधास। चाइनीज़ लोगों को आई थिंक रेड कलर बहुत लाइक अच्छा लगता है, ब्लैक कलर। और अगर आप फैंसी टाइप हो तो ये लव वेल कंपनी इज द मोर लाइक द बेस्ट इन ब्रांड। सिंगापुर में उनको ऐसे कड़े पहनने का बहुत शौक होता है। पता नहीं कोई ऐसे बीट्स पे होते हैं और उसमें कुछ उनका ड्रैगन बना होता है। अब हम लोग जा रहे हैं डोवर का कैंपस। I'm not sure. I think there's be a sign there, lah. The school. UWC. UWC. In 400 meters, turn left. ये यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज़ यहीं पे है, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो गया, नेशनल पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट हो गई। ये है डोवर क्रेसेंट, डोवर पुलिस स्टेशन। बहुत सेफ जगह है, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं। NCAD हो गया। Turn left. यहाँ पे रहेंगे बच्चे, यहाँ से एंट्री करेंगे और In जैसे 300 meters, turn right. ये ज़मीन से चलते हुए जाएंगे। पता नहीं कब देखने को नसीब होगा। देखो यहाँ से चलते हुए अच्छा है, कवर्ड है। देखो आराम से धूप में जा सकते हैं। ये साइकिलिंग पाथ भी है आई थिंक। वो आ गया सामने। Yeah, you have to go inside. I think this one. Stop the security. शायद नहीं जाती। Okay, you can drop us. You wanna drop here? Oh yeah, at the Whenever. gate. At the gate. At the please. gate. After the gate now. Yeah, thank you. हाँ। College. Yeah, no, but I think advisable because it's sometimes when you do some exercise or whatever.
पूरी सफाइयाँ कर रहे हैं। ये यहाँ की प्राइमरी स्कूल है, इसकी पूरी सफाई हो रही है। ये यहाँ पे स्विंग है, ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल है। हर जगह इन लोगों ने कितना ग्रीन प्लांटेशन की हुई है। लाइटनिंग वार्निंग, व्हेन लाइट इज फ्लैशिंग डेंजर, स्टे इन शेल्टर। हाय, इतना खूबसूरत है स्कूल। इसलिए ये जो जिम्नेजियम टाइप बनाया हुआ है, और फिर ये जो है ये भी एक स्विंग है, मुझे स्विंग पे बैठना है। मैं झूला झूल रही स्कूल के अंदर। स्विमिंग की यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। ये टाइगर वॉर्म रखी हुई है, इतना खूबसूरत पूल है, देखो कितना अच्छा पूल है। यहाँ पे स्पिनिंग बाइक्स भी हैं, डाइविंग भी है। ये यहाँ के लिए वो कायाक्स वगैरह रखे हुए हैं, बिल्कुल स्विमिंग पूल के बिल्कुल बराबर में। और ये गार्डन, हर जगह देखो इतने बड़े बड़े दरख्त वगैरह हैं। और ये यहाँ का आउटडोर टेनिस कोर्ट है। यहाँ पे लोग अभी भी क्लासेस ले रहे हैं, टेनिस एंड बास्केटबॉल, हर चीज़ का ना यहाँ पे बैठने की भी जगह है। मैं आपको दिखाती हूँ टेनिस। ये देखो, ये टेनिस कोच के साथ लगा हुआ है, अच्छा खासा टेनिस। क्या प्रैक्टिस करें, 1 कोर्ट, 2 कोर्ट, 3 कोर्ट। I'm already dying. ये कह रहा है मैं मर रहा हूँ अभी। ये देखो, ये दूसरा बॉल है। चेंजिंग रूम और ये जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए स्पेसेस हर जगह बनाई हुई है, टेनिस कोर्ट के बाहर वाले। और हर जगह एक और अच्छी चीज़ जो लगी मुझे, वो ये पानी की फ़िल्टर्स वगैरह थी, ताकि आपको साफ़ पानी मैसर हो। स्कूल का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से है कि सफ़ेद बिल्डिंग है, और जितनी भी जो ऐसी जो पोल स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी जो हैं ब्लू कलर में है। और इन्होंने आई थिंक ये नेचुरल इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, ये जो अगर एक स्टोन था या रॉक था वैसे ही इन्होंने बनाया हुआ है नीचे, या कुछ होगा अंदर। ट्रीज़ को इन्होंने कैंपस में रखा है। कितना बड़ा पुराना दरख्त है, देखो इसके रूट्स वगैरह कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। और ये बैम्बू का लग रहा है मुझे दरख्त। अच्छे साफ पत्ते हैं, हर चीज़ जो है ना अच्छी साफ़ है। ये आई थिंक इनका वो है हॉल, प्लेयर्स एंट्रेंस कोर्ट 2 शायद होगा कोई। और अंदर अभी तो खैर जाने की इजाज़त नहीं है। ये इनके स्ट्रक्चर्स, पिलर्स वगैरह, ये ग्रीस में इस कलर का ब्लू पेंट होता है। आई थिंक इनका जो लोगो भी है ना वो फाल्कन या फीनिक्स टाइप है, PX मास्टर्स फीनिक्स टाइप चीज़ बनी हुई है, इनका लोगो लग रहा है। हाँ, ये है परफॉर्मेंस सेंटर। देखती हूँ अगर जा सकती हूँ अंदर तो। ये इनका है सीनियर स्पोर्ट हॉल, बड़ा ठंडा है सारा। बास्केटबॉल ये लोग ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है, ड्रामा एंड डांस है, म्यूज़िक, लैंग्वेज एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड फिटनेस, देखो रॉक क्लाइंबिंग भी है, म्यूज़िक, वायलिन प्ले कर रहे हैं, ये देखो बेकिंग कुकिंग कर रहे हैं, ये ओरिगामी टाइप कोई चीज़ बना रहे हैं। ये आई थिंक इनका सॉकर है। ये फ़ोटोग्राफी की क्लासेस हैं, बास्केटबॉल, रनिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, स्विमिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह। क्रिएटिव, कमिटमेंट टू केयर, कोलैबोरेटिव, कम्युनिकेटिव, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ मैनेजर। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, टू बी सेल्फ मैनेजर। ये इनके साइन अप एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, ट्रायल विंडोज
अभी अगस्त का होगा. This is for me. So this is an old map. This is the original sign erected at the entrance in 1975 when SIS was officially renamed UWCSCA. The sign mysteriously disappeared following the graduation in 78 and reappeared 30 years later at the class of 78's 30th reunion. हो सकता है किसी ने प्रैंक खेला हो. The original sign that hung at Belluntu 1975 and 1984. Since the time it has been in the care of Brian Green, former teacher, till 97. Thank you for taking such good care of this important piece of UWCSCA history, Brian. This is the library. It's so nice. It's air conditioned. Everyone's going to be sitting there. This is UWC opening in the 70s, 80s, 90s, 2000s and then 2010s. ये देखो, ये इतना खूबसूरत ये स्लाइड बनाई हुई है और सारा ये इतना खूबसूरत होटल के पास. ये आप चेक करें, इनका है ये ट्रैक एंड फील्ड. यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स वगैरह जैसे होता है ना, बेसबॉल, रग्बी. इतना खूबसूरत इन लोगों ने स्टोन के ऐसे स्टेप्स बनाए हुए हैं फॉरेस्ट के थ्रू. और ये इतना जंगल है, बिल्कुल फॉरेस्ट नुमा जंगल. और ये स्टेप्स आ गए. स्टेप्स से होते हुए हम उतर रहे हैं और ये आ गया ट्रैक एंड फील्ड. ये सब इनकी बैठने की जगहें बनाई हुई हैं लोगों ने. अच्छी सफाइयाँ चल रही हैं, मेंटेनेंस चल रहा है, काम पे लगा कर रखा हुआ है लोगों को. यहाँ पे मेक श्योर यू एंजॉय दिस प्लेग्राउंड इक्विपमेंट डिज़ाइन फॉर 10-year-olds एंड अबव. ये स्विंग है, स्विंग पे जाके बंदा जो है ना नीचे जाता है. ये साइन मुझे जैसे पेरेंट्स के लिए जो खुद बैठना चाहते हैं हर चीज़ में. और आ गया जी ये आपका ग्राउंड. यहाँ पे अभी सारी पेंटिंग चल रही है. देखो वेयर एंड टेयर हो जाता है, बारिश होती है यहाँ पे काफ़ी, पेंट वगैरह उखड़ जाता है. ये सब बना हुआ है लकड़ी का बना हुआ है. फ़ैन स्विचेस भी देखें कितने पुराने से हैं, लेकिन साफ़ सुथरे हैं. हर चीज़ लॉक है. लॉक देखो कितना साफ़ बना हुआ है. ये स्टेडियम का टीवी लगा हुआ है. यहाँ पे मैच के स्कोर्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं. पूरा ये जो है आपका आई थिंक एस्ट्रोटर्फ है, इसके ऊपर सब पेंट हो रहा है फ्रेश. अब ऐसे ही तो इतनी फ़ीस नहीं दी जाती ना. अब इतनी गर्मी में इतने लोग काम कर रहे हैं. मिनिमम वेज यहाँ पे $15 एक घंटे का है. तो सोचो ये बंदा जो पानी पी रहा है वो भी मिनरल वाटर है. तो ये जब माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं तो वो सोच में यही होता है कि बस बच्चे ये सब चीज़ों से एक्सपोज हुए. हमारे मुल्क में इन सब चीज़ों की फैसिलिटी ऐसा नहीं है. और ख़ास तौर पे इतना सेफ़ एनवायरनमेंट में रहते हुए अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बच्चे जो हैं कुछ कर जाएं, सीख जाएं. कोशिश तो यही है दूर रह के. मुझे तो दरख्तों से इश्क हो गया यहाँ पे. कितने खूबसूरत है सारी फॉइलेज. और बंदा घंटों बैठ के यही दरख्तों को देखता रहे, एडमायर करता रहे. अल्लाह ताला की भी शान है भाई. हर जगह इन लोगों ने ऐसे रेन वाटर गटर्स टाइप बनाए हुए हैं ताकि जब बारिश का पानी हो वो सारा जाके एक जगह कलेक्ट होता है. बड़ा खूबसूरत है यहाँ का एनवायरनमेंट. मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा है. बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह. अब ये दरख्त है, किसी को देख लें, बंदा लेट के घंटों इसकी छाँव में लेट के आसमान की तरफ देख सकता है. मतलब कि दरख्त के अंदर अल्लाह ताला ने एक और दरख्त पाम नुमा. ये देखो कितना बड़ा पाम नुमा फैसिलिटी है. फर्न्स देखो कितने बड़े फर्न्स हैं. बड़ा खूबसूरत दरख्त है. हमारे मुल्क में होता 2 दिन में काट देते. ये वाला दरख्त देखो कितना खूबसूरत कलर है इसका. मतलब कि इसका जो है आप रबरी टेक्सचर देखें. आई मीन हर एक
उसमें गुच्छा 3-3, 4-4 का लगा हुआ है। इतना शाइनी पत्ते हैं। वो जा रही है मेरी फैमिली, आदि, शान, शानजे, मामा। देखो क्या खूबसूरत दरख्त है। बहुत खूबसूरत है। फिर आगे स्विंग्स मेरे बहुत पसंदीदा मशगला दुनिया में। बचपन से मुझे शौक़ है स्विंग्स पे बैठने का। एक दफ़ा हम लोग इस्लामाबाद गए थे और वहाँ पे मैंने एक्चुअली अपना सर फाड़वा लिया था स्विंग पे बैठ बैठ के। वो हम लोग गए थे, एक आंटी थी हमारी, पारो आंटी है, नशरत अंकल के बच्चों के साथ, सामिया, सारा, शाबानो। उस वक्त शाबानो नहीं थी, शहरियार था। हम लोग वहाँ बैठे थे। वो झूला पता नहीं कोई मेड थी वो दे रही थी, उसने ऐसा झूला दिया मेरा सर ही फट गया। फिर वो हॉस्पिटल में जब तक लेते गए, मम्मी का सफ़ेद दुपट्टा था वो लाल हो गया था। एनीवेज, ऑन बेटर नोट्स, ये देखो ये दरख्त कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत। और ये पाम, सोचें ऐसा पाम अगर पाकिस्तान में हो और किसी 5 स्टार होटल के बाहर या कोई 5 स्टार बैंक के बाहर लगा हो, तो ये नर्सरी में ऐसा पाम के तो 5-6 लाख रुपये उस ज़माने में थे जब मैं घर बना रही थी। ये तो आप भूल जाएं, ये तो अब इम्पोर्ट भी शायद ना होते हो। आई मीन ऐसी यहाँ पे ऐसी ग्रो हो रहे हैं ऐसे पाम्स, सोचो। और ये देखें भाई आप, ये हैं यहाँ के खूबसूरत झिरमिरी सफ़ेद अंगड़ीपुस। इनका नाम है अंगड़ीपुस। ये बिल्कुल ही इनका इनको क्या देख के किसी फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म पे बनाया होगा। आई मीन ये है क्या चीज़, इसमें स्मेल है, भीनी भीनी सी खुशबू है इसमें। और ये मुझे लग रहा है ये वो है आईवी टाइप चीज़ इसके अंदर से जो निकल रही है। यहाँ पे तो एक वो लीफ होता है पैंडन लीफ, उसके भी बड़े लोग खाने, डिज़र्ट्स वगैरह। चेक करें, फर्न्स चेक करें। अच्छा मेरा बुलावा आ गया है, ये फर्न्स चेक करें, ये बागात, फर्न्स के बागात चेक करें। उफ, ऐसा लग रहा है कि ऐसा किसी जंगल में आ गए हैं फर्न्स के। अब आप ये देखें, ये है यहाँ का जिम्नेज़ियम टाइप एक जगह जहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं शाम में, जब अपना ये टेनिस वेनिस खेल लिया या फारिग बैठे हुए। ये देखो एक छोटा सा हट बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे रात में लाइटों के नीचे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं स्कूल एनवायरनमेंट को। ये देखें एक्सरसाइज के लिए कोई चीज़ बनाई हुई है। ये पौधा देखें, ये कितना खूबसूरत है, हाय। ये देखो बैलेंस इसमें कितना अच्छा बच्चे सीखेंगे। इसके ऊपर से बैलेंस, एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर चढ़ के जाओ, ये भी बिल्कुल बैलेंस के लिए। और ये पता नहीं कुछ ऐसी है, बैठ के आई थिंक स्विंग करते हैं इसके अंदर। और ये है कोई स्नो में होती है ना चेयर लिफ्ट टाइप की, ये है प्ले एरिया। ये था नेशनल आइकॉन ऑफ सिंगापुर, प्राउडली डोनेटेड बाय माउंट फैबर लीजर क्लब। चलो ये लगता है किक मारने के लिए। दरख्त वो अभी भी खेल रहे हैं। ये देखें झिलमिल 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 बैम्बूज और बैक। ऑन करना होता मुझे वीडियो, आई लाइक ओह वाओ, लुक एट दिस फैन। शैन, ये वो ऐसे नजमी वाला पंखा है। ओह गॉड, ये यहाँ का है डाइनिंग हॉल। ये यहाँ पे बच्चे रात में बैठ के, बोर्डिंग स्कूल वाला डाइनिंग हॉल है। ये देखो यहाँ पे आई थिंक ये ट्रैश कैंस वगैरह रखे हुए हैं और ये हाथ वाथ धोने की जगह है, यहाँ पानी मिल रहा है। और ये भी नीचे भी है डाइनिंग हॉल इनका बना हुआ। ये यहाँ का अभी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ये नेचुरल कैफ़े वगैरह है और आइसक्रीम मशीन भी है। और ये देखो बैठने की वो टिन के डब्बों से वो बनाई हुई है। ये है कर्ट हान हाउस ऑन द राइट एंड नेल्सन मंडेला ऑन द राइट, और ये कैंटीन, ये इनका रास्ता जा रहा है। ये यहाँ की है कॉलेज क्लिनिक, एक्सेस टू बोर्डिंग हिंदी, ये इनका बोर्डिंग हाउस है। बाहर से नज़र आ रहे हैं दरख्त वगैरह।
सो दोनों शांति और महा जो हैं वो हाई स्कूल ऑफिस में हाई स्कूल की क्लासेस अटेंड करेंगे और ये है इनका हाई स्कूल ब्लॉक। यहाँ पे इनकी सारी पढ़ाई, सारी क्लासेस वगैरह सब यहीं पे होगी और ये टेंट के बिल्कुल नीचे है। यहाँ बिल्कुल ऊपर लाइब्रेरी है इस तरफ और बिल्कुल सीधा अगर इस रोड से जाएंगे वो दूर जहाँ मैंने दिखाया था ना आपको कैफ़े वगैरह, वो है सारा इनका बोर्डिंग हाउस। इतनी अभी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी बहुत थी। मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ। देखो इन्होंने ना सारे दरख्तों के वो नाम भी डाले हुए हैं, ग्रीन हार्ट ऑफ डक्स, ये सारे। हाँ अभी इतनी गर्मी लग रही है, वो पूल देख के तो दिल कर रहा था कि बंदा खुद ही कूद जाए। अभी जो है मैं जाऊँगी पूल के लिए, वापस जाके मैंने नहाना भी है तो पहले मैं पूल जाऊँगी और फिर नहाऊँ। देखो हर जगह लोगों ने ना पंखे भी लगाए हैं, कितना सोचा हुआ है हर चीज़ का, हर जगह पंखे। और ये लोग बैठते हैं ना, ये लोग ऐसे पहले नहीं बैठते, सब लोग जो है कोनों पे लगे रहते हैं। तो ये जो है ये यहाँ की वो आ गई बेकरी नुमा चीज़, कैफ़े नुमा चीज़ है। यहाँ पे ना आपको ड्रिंक्स, कॉफ़ी, वैसी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हेरिटेज सेंटर, हर जगह इनके ऐसे लॉकर्स बने हुए हैं अपनी चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और आप देखें हर चीज़ का कलर कॉम्बिनेशन भी ब्लू एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट, ब्लू एंड वाइट। और ज़मीन देखें बिल्कुल वो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं ना, उनको क्रश करके बिल्कुल पूरा पैटर्न बनाया हुआ है वेव्स जैसा। ये इनका मेन हॉल है। आई थिंक यहाँ पे इनकी सारी वो होगी ओरिएंटेशन वगैरह। सन रूफ दिया हुआ है लेकिन बारिश के लिए ऊपर से बंद किया हुआ है, ऐसे पॉट्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर से भी ग्रीनरी झांक रही। ये इनका वो आ गया ऑफिस जहाँ से वो लेना था यूनिफॉर्म। ये मिडिल स्कूल आ गई इनकी, ये ज़रा दूर है। ये प्राइमरी स्कूल है इनकी जहाँ पे वो था। फिर यहाँ से फिर हम वही स्विमिंग पूल और मल्टीपर्पज़ हॉल की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। ये वो स्विंग वाली जगह है जहाँ मैं बैठी हुई थी। ये है UWC की सारी कैंपस पूरी दुनिया में, मुझे नहीं टॉकिंग सारी दुनिया में। एंड ये है UWC कोस्टा रिका जो यहाँ पे आया, फिर UWC न्यू मैक्सिको और विक्टोरिया कनाडा विच इज़ आई थिंक ब्रिटिश कोलंबिया के पास आ रहा है। फिर एक अटलांटिक कॉलेज है UK पे है, तो UK पे बड़ी है, एक है नेदरलैंड्स में, फिर नॉर्वे पे, फिर इटली, ये आ गया जर्मनी, आर्मीनिया, थोड़े साउथ अफ्रीका में भी हैं। देखिए एक है तंजानिया में, ईस्ट अफ्रीका, और एक है कोई और जगह मोस्टार। फिर आ गया ये इंडिया, महिंद्रा कॉलेज पुणे। फिर आ गया ये फुकेट और चाइना, जापान, फिर चाइना, आर्मीनिया, और ये आ गया इनका हेड ऑफिस जो है यहाँ पे सिंगापुर। ये देखिए ये आ गया इंडिया वाला और ये आ गया सिंगापुर वाला, और वो है हांगकांग। हांगकांग और सिंगापुर कितना करीब है। ये सिंगापुर है, वो थाईलैंड है चिकन लेग टाइप का, और ये है हांगकांग। कूल कूल। तो ये इंडिया आ गया हमारा। ये देखें ये है UWC देयर इज़ मोर इन अस। ये इनके 3 झंडे आ गए। और ये देखें इसकी सबसे क्यूट है ये हमारा छोटा बेबी पूल, वो बिग पूल और ये बेबी पूल। इतना अच्छा ठंडा पानी लग रहा है, बिल्कुल दिल कर रहा है पहले बंदा जो है 3 ग्लास ऐसे ठंडे पानी की बर्फ़ डाल कर पिए और फिर ऐसे पूल में जाके ना निकले ही ना। उफ, मैं बता नहीं सकती। वैसे तो वीडियो में अच्छा लग रहा होगा अगर आप AC के कमरे में बैठ के देखें, लेकिन इतनी गर्मी में तो मैंने कहा दिवाला निकल जाता है। एक्चुअली धूप इनकी बहुत तेज़ है
और जो है ऊपर से हवा तो चल रही है मगर ह्यूमिडिटी बहुत है यार। इन द सेंस के एक अलग लेवल है। ये यहाँ का गेट आ गया, ये खोलते हैं। देखिए अब टैक्सी आई है तो गेट, और वो सारी फैमिली खड़ी हुई है। और ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे वो आ गया इनका एंट्रेंस। ये देखिए यार